टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में वी हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, राइट? एंड ग्रुप्स में वी हैव स्टडीड एटॉमिक रेडियाई, जिसे हम एटॉमिक साइज भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ लिया था वैलेंसी, एंड थर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट मेटालिक बिहेवियर। मेटालिक बिहेवियर हमारे लिए एक और टर्म होता है, कौन सा होता है बताओ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक है। सो नाउ टेल मी, इफ आई विल गिव यू अ ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, which is the most electropositive element? Barium. Barium is most electropositive. Okay, which has the smallest size? Beryllium. Beryllium. Very good. So this is electropositive and the smallest size is this. Okay, tell me which valency your magnesium is carrying? +2. 2 Plus Valency is never plus. 2. It's just a whole number without any plus or negative. Okay, so 2 is the valency. What is the valency of the other elements? Gurma 2. Okay, valency remains same. How many valence electrons is the elements having right now in front of you? 2. Valence electrons. 6. valence electron. Gurma 2 ही तो 2. Yes, valence electrons are 2. Fine. Which group it is? गुरु वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 कैसे हुए? बच्चा बेरिलियम ले लो। 2 282 ओके गुरु, यस 2882, राइट? ग्रुप कौन सा है ये? यस सेकंड ग्रुप. सेकेंड ग्रुप. वेरी गुड. हम इसे क्या बोलते हैं? Alkaline earth. Alkaline earth metals. So you are clear about all this. The last property of the group which we have to study is the nature of oxides. Now you tell me, they are metals, right? हम चलो इसी ग्रुप की बात करते हैं. They are metals. Which kind of oxides they form? Basic oxide. Basic oxides. Give me an example. कैल्शियम ऑक्साइड, Magnesium Calcium oxide. plus oxygen gives calcium oxide. When this calcium oxide mix with water, it gives calcium hydroxide. COH whole twice. Clear? So we say they are basic in nature. So here the characteristics of groups are over. Let us talk about periods. अब periods में आप लोग सबसे पहले क्या करो? Take a second period. Lithium. इसकी EC बताते जाओ मुझे फटाफट से. 2-1. 2-1 1. Okay. Beryllium. 2-2 2 Boron. 2-3. 3 After this carbon. Carbon 2-4. 2-4. After this Nitrogen 2-5. 2-5. then oxygen, ऑक्सीजन 2-6. 2-6 chlorine, 2-7 7 On. and neon. 2-8 So let us study the size. कल मैंने साइज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, इफ यू पीपल रिमेम्बर, जो हमने विशाल का एक Yes, डाउट लिया था. अब हम कह रहे हैं, वो डाउट यहीं से था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का था. सो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक व्हाट डू वी कॉल एटॉमिक साइज, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वहां जैसे हम कहते थे ना टॉप टू डाउन, यहाँ हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट. अब एटॉमिक साइज decreases. Why? Give me the keywords. Why? Guram, because the nuclear force is going higher while moving left to right. Nuclear force of attraction increases. Yes. Increases on what? On valence shell. valence shell Valence shell. So size decreases. अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता ही क्यों है? Guram, yeah. हाँ,
Because the number तो of मैं कहना है number of Given number proton of equal to number proton. of electron, and in periods number of electrons are increasing and the shall remain Okay. constant. Okay, so we can say atomic number increases, so valence electron increases. गुरमा आई Clear? थिंक इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले इंक्रीज होंगे फिर बाद में डिक्रीज होते हैं. No, सारे इंक्रीज ही तो हो रहे हैं. Increase देखो होते हैं. आपके सामने 1, 2, 3, 4. It is continuously increasing. No, till sorry, it Gurma, I grows. mean the valency of them. Valency first Valency is increases different. then- We are not talking about valency right now. ठीक है? So is atomic size clear to you people? Yes, Gurma. Okay, so let us talk Gurma, about can you now please repeat? valence. Actually, I got disconnected. Who is disconnected? Gurma Divyam. So what should I do? Gurma, this atomic size. What do you want, Divyam? I'm not able to understand. What do you want to Gurma, I'm say? saying, can you please repeat the concept of atomic size? I got I am disconnected. saying when you are moving from left to right, atomic size decreases. We say atomic size decreases. Why? Because your atomic number increases, so valence electron increases, and hence your nuclear force of attraction increases on the last shell. आप यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है सबका, ठीक है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं ना हर बारी, तो उस हिसाब से लास्ट वैलेंस शेल पे उनका चार्ज जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है. तो जब बढ़ता जाएगा तो साइज ऐसे न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है उसको. सो व्हेन न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो साइज को छोटा कर देता है. इज इट क्लियर? Yes, Gurma. Okay, now let us talk about valence electrons. Valence electrons क्या होते हैं? Valence electron में अगर हम left to right जाते हैं तो what happen? Gurma, It it increases. 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 Increases by 1. One. हर One. बारी by 1 electron it is increasing. Clear? Next is valency. Valency क्या होती है बताओ? If let's take again an example Combining. of lithium, beryllium, Combining capacity of an boron, element. carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. What is the valency of your this particular compound, lithium? One. 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 1. One. Okay. Next, Two. 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 Three. boron, Three. 3. Carbon, Four. 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 nitrogen, Three. Three. Two. One. One. Zero. what is happening? First increases increases till from carbon. 1 to Until 4, Yes. then decreases from 4 to 0. 4 to 0. Clear? समझ आ Yes, गया? ma'am. अब ऐसा Yes, क्यों हो ma'am. रहा है? Why is it happening? Guru, क्यों? may I? Reason क्या दोगे इसका? Guru, As- because the metallic character is Atomic- decreasing. Yes. So we can say as we have metals present on left side of periodic table. Periodic table के left side में आपके metals होते हैं. So Yes. ये क्या करते हैं? They lose electrons, right? So गुरमा आपने बताया था कि जो मेटल्स होंगे उसमें 1, 2, 3 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में और जो नॉन मेटल्स होंगे उसमें 5, 6, 7. yes, so it loses till 3. Then at Yes. carbon, it share electrons, and from nitrogen to neon, they Gains gain electrons. electrons. Why? Because they are Because they are non-metal. non-metals. Non-metal. Clear? पूरा concept clear है? किसी को है doubt इसमें? No. No, Gurma. Okay, let us take another example, another topic here. We will going to talk about metallic and non-metallic behavior. So what happens to metallic and non-metallic behavior when we move from left Guru, to may I? right? Anyone? Guru, metallic character decreases and non-metallic increases. Okay, so we says that in another word we can say electropositive character decreases and electronegative increases. Now why electronegative character increases?
Gurma, due to non-metals are present on the right Yes, side. Gurma, on the right The side. periodic As Non-metals are- non-metals present on right side of periodic table gain electron to complete their octet. Clear? Yes, Gurma. Gurma, जो आपने Next. इलेक्ट्रो गुरमा जो आपने आप इलेक्ट्रो बोलो। पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस लिखा है, सो गुरमा वो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज नहीं होगा ना, गुरमा, आप एक बात बताओ, आई हैव लिथियम, ठीक है, इसमें मेरे शेल सेम है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है. लेट्स टॉक अबाउट बेरिलियम. 1 2 1 2. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है? 1. ऑब्वियसली 1. एनर्जी कम लगेगी, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, विच नीड्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ एनर्जी. ये तुम हायर क्लास में जाके और अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में भी आता है. कैसे आता है, दिस यू विल अंडरस्टैंड इन हायर क्लासेस, क्योंकि हम इसे NS2 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर रहा है, तो इसे हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, जो 11th क्लास में आपको समझ में आएगा. अभी आप इतना समझो कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लग रही है, 2 को निकालने में ज्यादा लग रही है. सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. आप एक चीज को देखो ना, जब समृद्ध आप नीचे जाते हो ग्रुप में, जो हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर, कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो वाई और बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. यहाँ तो आपने दे दिया साइज का, लेकिन साइज भी कैसे, न्यूक्लियर का चार्ज, अगर मैं इसको कैल्शियम को लूं मैग्नीशियम के साथ, तो न्यूक्लियस यहाँ है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे डिक्रीज कर रहा है, तो आपने जस्टिफाई कर दी ये चीज. बट अगर हम यहीं आ जाएं जहां पे नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स सेम, नंबर ऑफ शेल्स आपके सेम रहते हैं, उस केस में आप क्या करोगे? लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस ग्रुप, आप ये देखो, 1 लूज करना आसान है या 2 या 3? एनर्जी किसमें ज्यादा लग रही है? सबसे ज्यादा लगेगी एनर्जी यहाँ पे. और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है, याद रखो, ये सारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में आती है काफी हद तक. ये वाला आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो है ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ये वाला स्टेबल नहीं है, बोरोन इज नॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बट दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो आपका इलेक्ट्रॉन 1 लूज करना जितना आसान है, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? कौन जितना जल्दी लूज करके सामने वाले के साथ बॉन्डिंग बनाएगा. क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अभी 10th क्लास में तुम कैसे डिफाइन करते हो? द एलिमेंट विच कैन इजिली गेन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये नहीं होती है, अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ी जाए तो. इसकी डेफिनेशन होती है दैट द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ. Yes. मींस मेरे अंदर इतनी टेंडेंसी है कि मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के ले आऊं, राइट? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे मैं ये कह सकती हूँ, यू एंजॉय माय क्लासेस, तो मेरे अंदर ये कैपेसिटी है दैट यू एंजॉय माय क्लासेस, तो वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट, मींस उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले आएगा. तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप लिख लो इसको कहीं पे भी, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल. ऑक्सीजन इज सेकेंड, नाइट्रोजन इज थर्ड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट. नॉन मेटल्स में है ना? हाँ, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नॉन मेटल्स में. अब आप कहोगे क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स में नहीं होती? बिल्कुल होती है. अगर मैं बात करूं इस ग्रुप की, राइट, लिथियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है, बट हम वो पीरियड्स में ना डिफाइन करके हम उसे ग्रुप्स में पढ़ने चले जाते हैं. तो अगर मैं तुम्हें ये ग्रुप दे दूं, सपोज करो बेरिलियम बोरो मैग्नीशियम वाला, तो मैं कहूंगी बेरिलियम इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर दिखाता है. ऐसा नहीं है नहीं दिखाता. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हर किसी एलिमेंट में होती है, बट कौन किसको ओवर पावर कर रहा है उसके हिसाब से उसकी क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है. समझ आ गया कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? एम आई क्लियर नाउ? Yes. Okay, let us move further. Nature of oxides. When we move from left to right, what is the nature of oxides? Gurma, basic oxide decreases and acidic Acidic increase. हम ये कह सकते हैं कि 3 कैटेगरी है हमारे पास, मेटल्स, मेटलॉइड्स
नॉन and non-metals. Non. They form basic, they form acidic, and they form amphoteric. Ring. अच्छा amphoteric. नो एम्फोटोरिक। तो अगर मैं इस वाले पीरियड को लूं, मैं लिथियम से लेके नियॉन तक लूं, सो व्हाट डू यू थिंक विच विल गोइंग टू गिव मी द एसिडिक ऑक्साइड्स? लिथियम, एसिडिक, बेरिलियम, Neon. From non Oh. nitrogen to Oxygen, chlorine. Nitrogen. chlorine is acidic. yes. This is your basic. And these Puna, because these are metals. amphoteric. Amphoteric. बट ये आपका वो कार्बन बेरिलियम में भी आता है, amphoteric कार्बन होता है। एसिडिक में आता है, एम्फोटोरिक में ये आएगा खाली। कार्बन एसिडिक में क्यों आता है? कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड Yes. जब वाटर के साथ Non-metal. डिसॉल्व होता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता Carbonic acid. है, Acid. राइट? तो एम्फोटोरिक इज दिस। इसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारे आपके एम्फोटोरिक हैं। बट क्लियर? गुरुमा कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर बेटा, इट हैज Yes, नो sir. नेचर। क्लियर? तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि वो एम्फोटोरिक है, एसिडिक है, बेसिक है, हम उसे न्यूट्रल में लेते हैं। ठीक है? नाउ लेट मी, अब हियर योर चैप्टर एंड्स। ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, एक और चीज रह गई, रिएक्टिविटी। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करती हूँ तो मुझे एक बात बताओ, जब हम नीचे जाते हैं मेटल्स में और हम जब नीचे जाते हैं नॉन मेटल्स में, व्हाट हैपन टू द रिएक्टिविटी? गुरु मेटल में जब नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है और नॉन मेटल में कम बढ़ती होती है। है। नॉन मेटल्स में डिक्रीज करती है, क्यों? Yes. रीजन दो। गुरमा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। वो तो सभी में करेंगे, यहाँ पे भी 7 है तो यहाँ पे भी 7 ही होगा। अगर मैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया, सब में 7 ही होंगे वैलेंस शेल में। तो देखो मेटल्स क्या बनाते हैं, व्हाट डू मेटल्स फॉर्म? बेसिक ऑक्साइड्स। कैटायन। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एनायन। एनायन, कैटायंस बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ये उल्टा एरो लगा दिया मैंने, लूज करके, लूज करने। ये बनते हैं आपके गेन करके। तो आप मुझे बताओ, आयोडीन इजिली गेन करेगा कि फ्लोरीन इजिली गेन करेगा? फ्लोरीन वैलेंस। क्यों? Fluorine. क्यों? क्योंकि उसे एक ही गेन करना हो। गेन तो बेटा आयोडीन को भी एक ही करना है। यस, Fluorine. दिमाग लगाओ, Because shells- हम जब नीचे जा रहे हैं शेल्स बढ़ रही है। Is more तो reactive. उससे क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम कहते हैं नॉन मेटल्स में भी साइज इंक्रीजेस while going top to bottom. Yes? यस Yes. गुरमा। यस गुरुमा। तो और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? हम कहते हैं नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। सो इनकी गेनिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है नीचे जाते हुए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब क्यों डिक्रीज कर जाती है? एज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस। on valence shell decreases. फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, समझ आया कि क्या रीजन है? Yes, जब डिक्रीज कर जाएगा तो बिट ऑब्वियस है, न्यूक्लियस गेन नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन इजीली। तो हम कहते हैं फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। क्लियर? यस गुरुमा। यस Okay. गुरमा। याद रखो 11th में जाके ये कंसेप्ट मुझसे जब पढ़ोगे तो मैं इसमें ये बोलूंगी क्लोरीन जल्दी गेन करता है फ्लोरीन से, ये भी मैं बता रही हूँ पहले से। रिएक्टिव फ्लोरीन ही ज्यादा होता है बट गेनिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है। क्यों होती है 11वीं क्लास में बात करेंगे, ठीक है? ओके गुरमा। नाउ लेट अस कम टू फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस देती हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है? गोपेश, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल।
So now we have a question. It is saying X, Y, and Z are the elements present in the third period. They are present in the third period of periodic table. They are saying X forms acidic oxide, right? Then they are saying Y forms basic and Z forms amphoteric. Now the first question it is asking is, arrange the elements in the increasing order of their atomic number. आप बताओ किसका एटॉमिक नंबर, पहले तो ये बताओ इनमें से कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा राइट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल के? Y left. Y होगा Y left hand left, side, then middle Z, middle Z and then middle X. Z, and then X. Okay. तो एटॉमिक नंबर में अरेंज हो गया? Yes. Yes, Gurma. Yes, This is the atomic number arrangement. Yes. Good. Yes? Yes. Okay. Next part it is saying, name the most metallic element. Guru may I? Gurma हाँ. can Gurma, Bye. bye. I? Y. Right. Okay, so this is metallic. Then it is saying, in which group of the period Z is likely to be present? Which group? 13th. Group 14. Gurma, हाँ? 13. गुरुमा Group 13 14 होगा में ना? नहीं होगा। गुरुमा 14 पे कार्बन आता है, आपने बताया तो एसिडिक होता है. मैंने कार्बन But- एसिडिक बोला था. ये Gurma, but देखो, period तो 1, 2, 3 तो फिर थर्ड शेल में कितने गुरुमा electrons होंगे इसका मैं नहीं पता। थर्ड पीरियड बोला है ना। इन्होंने पीरियड थर्ड बोला है, ग्रुप पूछा है आपसे. ग्रुप पूछा है. Gurma, but हमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो पता होने Z चाहिए। belongs. They are talking about Z, amphoteric वाला. गुरुमा 13 ग्रुप. Absolutely correct. 13 ही तो है. कंफ्यूजन में क्यों हो तुम लोग? भाई मैंने अभी क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड हो गया, देन 13th में आपके क्या आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, ये Yes. सारे एम्फोटोरिक होते हैं, ये मेटलॉइड्स में आते हैं आपके. गुरुमा क्लियर? आपको बताया था कि कार्बन एसिडिक होता है और कार्बन 14 ग्रुप होता है. कार्बन इज अ 14 ग्रुप, वो नॉन मेटल्स में आता है. ठीक है, क्लियर अबाउट दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल बनाया है जिसमें ग्रुप 16 दिया है एंड ग्रुप 17 इज रिटन हियर. ठीक है, 2 ग्रुप्स आर रिटन. इट यहाँ पे आपको डैश है, यहाँ भी डैश है, यहाँ डैश है, यहाँ ए लिखा है. ओके, देन डैश, डैश एंड बी एंड सी. Now the first question on this table, it is saying state whether A is a metal or a non-metal. A क्या है? Non-metal. Non-metal. Because क्यों? क्योंकि ये Chlorine. 17th group में है. 17th group में. Second इसने पूछा state C is more reactive or less reactive than A. C Gurma less. A से ज्यादा reactive है कि कम है? गुरुमा लेस रिएक्टिव. Less reactive. Less अभी हमने पढ़ा था. यस. Yes, Gurma. ठीक है, क्योंकि ये इजीली गेन नहीं करेगा तो रिएक्टिव भी कम हो जाएगा. Then it is asking, will C be larger or smaller in size than B? स्मॉलर. Smaller. Smaller in size. ठीक है, आपका C. क्लियर? कोई डाउट? स्मॉलर देन B से, याद रखना A के साथ मत कंपेयर कर लेना. So is this much clear? Yes, Gurma. यस गुरुमा. So here your chapter ends. Gopish, stop the recording.